Dear students, Assalamu alaikum. Can you hear me, Sidra? Iman? Walaikum assalam. How are you, dear? Shamsa, can you hear me right now? आवाज आ रही है आपको मेरी? Good morning, Vata. How are you, dear? Can you hear me, students? Okay, thank you so much for informing me that you can hear me. Yes, how are you all, students? Are you all fine there? Hope you are enjoying your college vacations as well as winter season. But it's good luck for you that you are not coming at Shalva Nursing College in the winter season. You are not going and taking off your blankets, your quilts, and you are taking your classes on your bed to take the quilt and blankets as well. Am I right? Because it's too cold outside. So it's very difficult to get up in the morning, especially to come in the college. So also the way too difficult, very difficult to take the distance from home to college in the morning. It's really convenient here. Okay. Yes, you're enjoying my weather living away from my way. Okay, live Asif. Is here any rainfall? Okay, let's start today's lecture about memorizing. First introduction. Good morning, dear. Okay, introduction. Second is audience and purpose. We have done this slide yesterday. Okay, parts of memo. Heading segment. I have told you again and again that this is the format of the memo. To reader's name and job title. From your name and job title. Date, complete and correct date. Subject. What the memo is about highlighted in some way. Okay. This is very important. This is basically the heading. Heading segment is this format is very important. Okay. Next slide is about
नहीं, ड्रॉ प्रेस नहीं हो गया मेरे से, मैंने खुद किया है। वो इसलिए कि मैं आपको बताऊंगी हेडिंग सेगमेंट में जो है वो, अच्छा ये ड्रॉ प्रेस हो गया है, तो भी ये आपका जो है वो बिल्कुल ठीक आपको समझ आ रही है। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द मेमो राइटिंग, ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है इसको, ये नजर आ रहा है आप बच्चों को? ये टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट, जिस तरह ये दिखाई दे रहा है आपको अभी जो मैंने किया है ये ड्रॉ। हेलो, आर यू लिसनिंग मी? Okay, yeah, you can see it. Okay, fine. Next slide. This is the basic format. You have to remember it always in your life. To, from, date, and subject. Okay, fine. Next slide. Okay, next slide is opening segment. The purpose of memo is usually found in the opening paragraph or includes the purpose of the memo, the context and the problem, and the specific assignment or task. Before indulging the reader with details and the context, give the reader a brief overview of what the memo will be about. Choosing how specific your introduction will be depends on your memo plan style. Including the purpose of the memo will help clarify the reasons the audience should read this document. The introduction should be brief and should be approximately the length of a short paragraph. ठीक है, वो क्या कहते हैं पर्पस क्या है मेमो राइटिंग का? वो यही है कि ओपनिंग पैराग्राफ में उसमें ही इंक्लूड होना चाहिए कि आपका पर्पस ऑफ मेमो है क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, स्पेसिफिक असाइनमेंट और टास्क क्या है। कहते हैं बिफोर इंडल्जिंग द रीडर विद डिटेल्स and the context give the reader a brief overview of what the memo will be about. Memo किसके मतलब होना चाहिए? Choosing how specific your introduction will be depends on your memo plan style. Memo plan style क्या होना चाहिए? Including the purpose of the memo will help clarify the reason the audience should read this document. The introduction should be brief and should be approximately the length of a short paragraph. concise होना चाहिए, short होना चाहिए, to the point होना चाहिए और स्पेसिफिक और सिंगल टॉपिक को ही डिस्कस किया जा सकता है इसमें। ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोगे वो ओपनिंग सेगमेंट था, ठीक है, ओपनिंग सेगमेंट के बिगनिंग में जितनी भी लाइन्स होंगी वो हम उसमें लिख देंगे। अगर कॉन्टेक्स्ट को लें, द कॉन्टेक्स्ट इज द इवेंट, सर्कमस्टांस और द बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। Okay, the context is the event, circumstance, or the background of the problem you are solving. Okay, you may use a paragraph or a few sentences to establish the background and state the problem. Oftentimes, it is sufficient to use the opening of a sentence to completely explain the context, such as through market research and analysis. Include only what your reader needs, but be sure it is clear. Michelle, are you not listening me? You can't hear voice. Listen my voice. Hello, Michelle. You always discuss.
The context is okay, आवाज आ रही है, fine. Okay, first opening segment में हम जो है वो जो भी problem होगी हमारी वो discuss कर देंगे. Context is the event, circumstance or background of the problem you are solving. You may use a paragraph or a few sentences to establish the background and state the problem. Oftentimes, it is sufficient to use the opening of a sentence to completely explain the context. ओके, वो कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को जो है आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है, सच एज थ्रू मार्केट रिसर्च एनालिसिस. थ्रू मार्केट रिसर्च एनालिसिस इंक्लूड ओनली व्हाट योर रीडर नीड्स बट बी श्योर इट इज क्लियर. कहते हैं कि ये क्लियर ही होना चाहिए. ठीक है जी, कभी भी ये जो है एनालिसिस करें, जो भी जो है सेंटेंस टू कम्प्लीटली एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट सच एज थ्रू मार्केट रिसर्च एनालिसिस इंक्लूड ओनली व्हाट योर रीडर नीड्स बट बी श्योर इट इज क्लियर. ये क्लियर ही होना चाहिए. सिमरा को वो इश्यू क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, ओपनिंग सेगमेंट पे आपको पता चल गया कि जो भी प्रॉब्लम है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट में जो है थोड़ी सी आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका इवेंट क्या है, सर्कमस्टांस क्या है, वो सारे का सारा उसमें दे देंगे. क्लियर टू एवरीवन, कॉन्टेक्स्ट में आएगा ये सारा कुछ. ठीक है, इसका बेटू 2 से 3 बजे लगते हैं. समरी सेगमेंट की अगर बात करें, इफ यू ओके, पहले ओपनिंग सेगमेंट है. ठीक है, ओपनिंग सेगमेंट में सिमरा अगर आवाज कट रही है तो आप जो है बच्चे एवरी वन लिसनिंग में क्लियरली. अगर आवाज कट रही है तो सिमरा रिकनेक्ट योर कनेक्शन. जी, oh thank you so much Sidra for informing me. बस समटाइम्स हो जाते हैं, कनेक्शन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ऑफ कोर्स हमें भी यहाँ पर हो जाती हैं, स्टूडेंट्स को भी ऑफ कोर्स हो जाती हैं. ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि जो 100% ही सबके चल रहे हैं. ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लासेस हैं तो यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्रॉब्लम्स एंड आई एम आल्सो फेसिंग, वी आर आल्सो फेसिंग हियर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर. ओके, इफ योर मेमो इज longer than a page you may want to include a separate summary segment. ठीक है, अब समटाइम ऐसा होता है कि मेमो जो होता है हमें एक से ज़्यादा मतलब जो है जाहिर है ज़्यादा लंबा भी हो सकता है मेमो. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता. ठीक है, तो वो जब चलेगा तो उसमें कहते हैं if your memo is longer than a page you may want to include a separate summary segment. तो क्या देना पड़ेगा आपको? सेपरेट summary segment देना पड़ेगा. ठीक है, however this section not necessary for short memos and should not take up space. This segment provides a brief statement of the key recommendation you have reached. These will help your readers understand the key points of the memo immediately. This segment may also include references to the method and the sources you have used in your research. ठीक है, तो आप रिसर्च में इसको यूज करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं. ठीक है जी, इसको पढ़े. सम्मी राइटिंग को जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या हो गया, आप लोगों का हो गया इंट्रोडक्शन. ठीक है, ओपनिंग सेगमेंट है. देन जो है आप लोगों का वो आ जाता है, ओपनिंग पैराग्राफ आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट आ जाता है. नेक्स्ट जो है आपका समरी सेगमेंट आ जाता है. क्लियर टू एवरीवन? रीड इट, इसको पढ़े जो नहीं समझ आती पूछने से.
मेरा ये ठीक कर दो। वालेकुम अस्सलाम नेहा, अब आप कहाँ से ऑनलाइन होके आ रही हैं भाई? ओके फाइन, नेक्स्ट चलते हैं हम डिस्कशन सेगमेंट की तरफ। समरी सेगमेंट पता चल गया ना कि अगर आप लोगों का जो है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड होगा, ज़्यादा जो है आपके पास लिखने के लिए होगा, तो समरी सेगमेंट हम एक अलहदा से पेज अटैच करके समरी सेगमेंट के नाम से उसमें सारी डिटेल लिख देंगे, ठीक है। डिस्कशन सेगमेंट की अगर हम बात की जाए तो डिस्कशन सेगमेंट्स आर द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द मेमो and are the parts in which you include all the detail that support your ideas. Being with the information that is most important, this may mean that you will start with key findings or recommendations. ठीक है, key findings और recommendation जो है वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप डिस्कस भी कर सकते हैं उसमें अपने लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस क्या होगी कि हमारा शॉर्ट होगा, कंसाइज होगा। सेकंड, कॉन्टेक्स्ट में, इंट्रोडक्शन में, ओपनिंग सेगमेंट में हम लोग उसको कंप्लीट करके वहीं पर उसको कंक्लूड कर देंगे। हाँ, अगर हमारे पास बहुत लंबा सा है डिस्कस करने के लिए कुछ भी, तो हम एक समरी सेगमेंट स्टार्ट कर देंगे, या अगर डिस्कस करने के लिए कुछ है तो हम डिस्कशन सेगमेंट को जो है वो चूज कर लेंगे, जिसमें हम डिस्कशन, रिकमेंडेशंस, की फाइंडिंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर चीज़ जो है वो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कशन सेगमेंट को पढ़ें और जो समझ नहीं आती पूछे मुझसे, शाबाश।
मैम आइडिया से मुराद हमारे सजेशंस भी हो सकते हैं। जी 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 Lama, very good answer, very good question. The discussion segment are the longest portion of the memo and are the part in which you include all the details that support your ideas. हाँ बिल्कुल, ideas support suggestion है basically. Begin with the information that is most important. This may mean that you will start with the key findings and recommendations. हाँ जी, दिस में मीन दैट यू विल स्टार्ट विद द की फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? की फाइंडिंग्स क्या होती है कि हम लोग उसकी की फाइंडिंग का मतलब यही होता है कि हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सोल्व है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से सोल्व किया है, वो सारा कुछ इसमें लिख देंगे। और रिकमेंडेशंस क्या है? फॉर एग्जांपल, इफ द ऑल स्टूडेंट्स आर कमिंग लेट in the course, just I am giving you the example, then principal do write a memo to all students and just display on the notice board or email to all students. It is requested to all students, yeah, it is ordered to all students that you have to come in time in college before 8 o'clock. If the other students will come after 8 o'clock, you will be punished and will be heavy fine. Okay, you have to pay a heavy fine or रुपी 500 और 1005 पर a day. ठीक है, उसमें वो सारी रिकमेंडेशन लिख देंगे और की फाइंडिंग लिख देंगे। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग लेट इन द कॉलेज ऑन डेली बेसिस, इवन दे आर द day scholars or they are the hostelized, so it is not possible for college management to arrange the students after 8 o'clock, then you have to come before 8 o'clock to all students. Okay, आपकी फाइंडिंग्स क्या है कि हैवी फाइन किया जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या किया जाएगा, उन लोगों को जो है वो पनिश किया जाएगा या फिर अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, रिकमेंडेशन में भी यही आ जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया ना एकदम से। देखिए, डिस्कशन सेगमेंट में सारा कुछ डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, ये खाली लॉन्गेस्ट पोर्शन तो नहीं बन सकता, टू द पॉइंट ही बात की गई है इसमें तो। लेकिन अगर कोई और इस तरह के इश्यूज हों जिसमें आपको, तो क्या है कि वो अब डिस्कशन सेगमेंट में अगर स्टार्ट करना है तो हम यही कहेंगे थोड़ी सी 1-2 लाइनों में कि भाई ये स्टूडेंट्स आर कमिंग लेट टुडे and all the time it is observed in the last month that the most of the students who are their hostels or they are the day scholars but they are coming late. ओके, तो ये डिस्कशन सेगमेंट में ये सारी की फाइंडिंग रिकमेंडेशंस में भी आ जैसे ये सारा कुछ शेयर देगा। क्लियर एवरीवन नाउ? The next discussion segment may start with your most general information and move to your specific or supporting facts. The discussion segment includes the supporting ideas, facts, and research that back up your argument in the memo. Include strong points and evidence to persuade the reader to follow your recommended action. ठीक है जी, आगे क्या कहते हैं? स्टार्ट विद योर मोस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन। कहते हैं जो मोस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है उससे आपने स्टार्ट लेना है। मूव टू योर स्पेसिफिक और सपोर्टिंग फैक्ट। सपोर्टिंग फैक्ट्स होंगे आपके। द डिस्कशन सेगमेंट इंक्लूड द सपोर्टिंग आइडियाज दैट रिसर्च दैट बैकअप योर आर्गुमेंट इन द मेमो। ठीक है, बैकअप आपने दे देना है मेमो को। इंक्लूड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड एविडेंस टू द परसुएड द रीडर टू फॉलो योर रिकमेंडेड एक्शन। रिकमेंडेड एक्शन क्या है, कैसे है, वो सारा कुछ जो है वो दे देना है आप लोगों ने। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन डिस्कशन सेगमेंट में जितने भी स्पोर्टिंग आइडियाज होंगे ना आपके, आप वो उसमें सजेशंस अपने दे देंगे। ठीक है, और लेकिन फैक्ट्स पर ये बेस करने चाहिए। ये नहीं कि आप लोग ऐसे उठा कर नहीं लिख सकते मेमो कभी भी। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन में है, जो आप लोगों को पता है कि ये हो सकता है, उसी सारे में लिख सकते हैं। ठीक है,
ओके फाइन मैम। जी समझ आ गई है सबको। आगे है क्लोजिंग सेगमेंट। क्लोजिंग सेगमेंट में क्या आता है? आफ्टर द रीडर हैज ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन, you want to close with the courteous ending that states what action you want your reader to take. Make sure you consider how the reader will benefit from the desired action and how you can make those actions easier. For example, you might say, I will be glad to discuss this recommendation with you during our Tuesday trip to spa and follow through on any decisions you make. क्लोजिंग सेगमेंट में क्या करेंगे कि आफ्टर द रीडर हैज ऑब्जर्व, कहते हैं जब रीडर ऑब्जर्व कर लेता है ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई। डिस्कशन सेगमेंट है, उसमें भी उसने देख लिया इंक्लूडिंग क्या है, इंक्लूड उसके बाद जो है वो दूसरा डिस्कशन सेगमेंट में भी देख लिया, समरी सेगमेंट में भी देख लिया, ओपनिंग सेगमेंट में भी हो गया, ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट में भी हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन सेगमेंट में भी सारा कुछ हो गया। अब वो क्या कहते हैं कि उसने देख लिया है, यू वांट टू close with a courteous ending. Courteous ending की हमेशा होनी चाहिए, नहीं you have to obey the all suggestions or all my orders, ठीक है। लेकिन एंडिंग इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें पता होना चाहिए रीडर्स को कि आपने क्या करना है उसमें। मेक श्योर यू कंसीडर हाउ द रीडर will benefit from the desired action and how you can make those actions easier. कहते हैं कि वो भी पता होना चाहिए कि रीडर के लिए जो है जिसका मेमो लिखा जा रहा है उसके लिए इजी स्टेप भी है कि नहीं है वो वाला स्टेप लेना, ठीक है। उसके लिए इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना मुश्किल तो नहीं है, आसान है कि नहीं आसान, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स को ही कहा जाता है कि यू हैव टू कम एट कॉलेज बिफोर 8 o'clock, मतलब यू शुड हियर बिफोर 8 o'clock, नोट आफ्टर 8 o'clock, ठीक है। अब उसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो है हमारे बहुत दूर से भी आ रहे हैं, ठीक है। अब हॉस्टलाइज्ड अगर देर से आते हैं तो ये तो बुरी बात है ना भाई, साथ हॉस्टल है लेकिन जल्दी उठना नहीं है या काम नहीं करना, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अब अगर इसमें देखते हैं हम लोग जो स्टूडेंट्स दूर से आते हैं लेकिन अब उन्होंने फॉलो तो करना है ना, ठीक है। ये बात तो नहीं है कि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना, ठीक है। एक आधी दफ़ा बंदा देर हो जाती है मंथ में, लेकिन ये कि डेली बेसिस पे ही लेट आना। अब ये कि वो 8:10 पर आ रहे हैं, 8:15 पर आ रहा है, क्या है कि 15 मिनट लेट होना। अब कहते हैं जो लेट हो वो तो 2 मिनट भी लेट ही कंसीडर होता है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि 2 मिनट बाद भी आएंगे तो लेट ही होता है, ठीक है। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि जब लेट ही होता है तो फिर वो कहते हैं जी हम क्या करेंगे कि लेट ही अगर हो रहा है तो वो स्टूडेंट को कहा जाएगा कि आप पहले निकलना 15 मिनट, अगर आप यहाँ से लेट हो रहे हैं तो आप घर से 15 मिनट पहले निकलें, ठीक है। क्या है, अब ये इंस्टीट्यूशन का रोल है, ठीक है। भले आप उनको इससे कोई वो कंसीडर ही नहीं करते कि भले आप हॉस्टल से आ रहे हैं या भले आप 2 घंटे की मसाफत से आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ ये कि आप 8 o'clock से पहले आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। इस तरह से मेमो राइटिंग में जब लिखा जाएगा तो एंडिंग भी जो है वो मेक श्योर, जिस तरह से ना मेक श्योर यू कंसीडर हाउ, make sure you will consider our request to come before 8 o'clock, इस तरह से हम courteous ending करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखें, make sure you consider how the reader will benefit from the desired action,
how you can make those actions easier. For example, you might say, I will be glad to discuss this recommendation with you during our Tuesday trip to SPY and follow through on any decisions you make. ठीक है, इस तरह से मेमो राइटिंग जो है हम लोग लिख सकते हैं किसको, स्पोर्ट्स डे के हवाले से। अगर हम मैनेजमेंट को भी मेमो राइटिंग कोई मेमो राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं कि कितना बजट है हमारा स्पोर्ट्स डे के लिए, कितना नहीं है, कितनी, तो ये रिकमेंडेशंस होंगी। हमारी डिस्कशन सेगमेंट भी उसमें आ जाएगा, और अगर ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा तो समरी सेगमेंट भी आ जाएगा कि हम लोगों ने अगर स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए हमें टी शर्ट्स भी चाहिए, ट्राउजर्स भी चाहिए, मतलब किट्स भी चाहिए उसके लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स की भी एवरी स्टूडेंट के लिए चाहिए। हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए भी जो है वो भी हमें फाइनेंस चाहिए, हर चीज़ के लिए हमें जो है वो फाइनेंस चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो it will be very grateful to you if you will provide us more budget for the sports day। ये एंडिंग कटियस एंडिंग होगी उसकी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट राइट नाउ? ठीक है, लेकिन डिस्कशन सेगमेंट में, ओपनिंग सेगमेंट में हम तो कहेंगे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर स्पोर्ट्स डे, but we have not much more finance for it, but it's compulsory to celebrate. It's a part of our curricular activity. That's why we are going to celebrate this sports day, and we need more budget and more finance for the decoration of the sports day, for the kids, for the students, 400 students of BSN। ठीक है, वो सारा हम लोग इसमें लिखेंगे, डिस्कशन सेगमेंट में वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितना बजट चाहिए, किट कितने की है, और फिर 400 स्टूडेंट्स की किट कितने की आएगी, वो सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं वो इसमें आ जाएंगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? सब समझ आ रही होगी आपको मेमो राइटिंग की अच्छे से? ठीक है, पढ़ें इसको। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो बताएं मुझे। It's winter season here. So much cloudy weather and cool weather here in Chalamajasi College. But today, when I wake up in the morning, just I have checked the weather, online weather, weather in Lahore. Just I Google, then there was sunshine really from 7 a.m. to 3 p.m. And I was just very glad at that time that it's a sunny day there, but still cloudy. It's about 11 o'clock a.m., but still cloudy. There is no any ray of sun. So can I believe on Google's weather? Sheetal Sathi present, ma'am. Can I show the Sheetal? We are not participating in lecture. जब प्रेजेंट की बात आती है तो फटाफट प्रेजेंट गिनना शुरू हो जाती है। अच्छा जी,
कल से इंशाल्लाह हम मेमो फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेमो फॉर्मेट पढ़ेंगे, वो भी सारा क्लियर हो जाएगी। ये समय जो है वो हो गया है, आप लोगों का स्टार्ट हो गया है रिवीजन जो है, ठीक है। रिवीजन में भी कितने टॉपिक्स जो हैं वो अब हम लोगों ने जितने भी पढ़े थे, हमारा इंटरव्यूइंग स्किल्स था, हो गया वो इंटरव्यूइंग स्किल्स आप लोगों का या नहीं हुआ अभी? जी वर्दा, इंटरव्यूइंग स्किल्स हो गया? वैसे सीवी राइटिंग तो मैंने आपको करवाया था ना जी, इंटरव्यूइंग स्किल्स हो गया हुआ है? ओके, इंटरव्यूइंग स्किल्स हो गया हुआ है हमारा? नहीं, थर्ड ईयर में का इंटरव्यू स्किल्स करवाया था, ये अभी करवाया आपको थर्ड ईयर में, मतलब नहीं फाइनल ईयर में। इंटरव्यूइंग स्किल्स तो है ही आपका फाइनल ईयर का टॉपिक, ठीक है। इंटरव्यूइंग स्किल्स हो गया हुआ है, मीटिंग एंड मिनट्स हो गया हुआ है, सीवी राइटिंग हो गया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। साथ में ये मेमो राइटिंग हो गया हुआ है। इसके अलावा और क्या हो गया हुआ है? 4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सीवी राइटिंग हो गया है, इंटरव्यूइंग स्किल्स हो गया है, मिनट एंड मिनट्स हो गया है, और मेमो राइटिंग हो गया है, ठीक है। ये 4 चीज़ें होंगे। इसके अलावा क्या मैंने करवाया आप लोगों को? ऑनलाइन क्लास कोई हुई नहीं आपकी? ऑनलाइन कोई क्लास हो, मतलब ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं, फिजिकल क्लास कोई भी लाइव क्लास नहीं हुई है आपकी है, मतलब फेस टू फेस क्लास कोई भी नहीं हुई है अभी आपकी फाइनल ईयर। वो ये वजह हुई है कि जो एक मंथ में स्टूडेंट्स आए हैं वो आप लोगों ने पढ़ना था, वो आप लोग जो हैं वो क्लिनिकल पे अपने चले गए हुए थे, इस वजह से, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स के अलावा मुझे बता दें कोई टॉपिक हुआ है वहाँ, फिर हम अपना राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट शुरू करेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है आप लोगों की, वहाँ पर हम लोग जो है उसकी तरफ टर्न करेंगे, और बाकी चीज़ें जो है हम इंशाल्लाह उसकी तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन भी आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और मेमो राइटिंग आप लोगों ने मेमो फॉर्मेट तो कर लिया है, मेमो राइटिंग वगैरह आप लोगों की रहेगी। टॉपिक फिर से बता दूं जो हमने किए हैं, इंटरव्यूइंग स्किल्स, ठीक है। इंटरव्यूइंग स्किल्स है हमारी, ठीक है। मिनट्स एंड मीटिंग्स, इंटरव्यूइंग स्किल्स, मिनट्स एंड मीटिंग, सीवी राइटिंग एंड मेमो राइटिंग, ठीक है। 4 टॉपिक्स वी हैव डन इट, ये 4 हो गए हमारे टॉपिक। इसके अलावा जो है वो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कौन से टॉपिक आप लोगों के रह गए हैं वो भी देख लें। अच्छा, क्रिटिकल एनालिटिकल रीडिंग का करिकुलम बिठाया आप लोगों का हो गया हुआ है, ठीक है। इंटरव्यूइंग स्किल्स भी हो गया है, बाकी मिनट्स एंड मीटिंग भी हो गया है, मेमो राइटिंग भी हो गया है। अब आप लोगों का जो है ना मेरे ख्याल से राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट रह गया है, पब्लिक प्रेजेंटेशन है आप लोगों की, ठीक है। पोस्टर प्रेजेंटेशन है, यस पोस्टर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देते हैं हम लोग भी, ठीक है। पोस्टर प्रेजेंटेशन है, और रिपोर्ट राइटिंग है, राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट है,
और इंटरव्यूइंग स्किल्स हो गया है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत ही काफ़ी काम पड़ा हुआ है वैसे अभी। एनी हाँ, पब्लिक प्रेजेंटेशन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे पब्लिक प्रेजेंटेशन, या फिर इसके अलावा राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट। पब्लिक प्रेजेंटेशन, मज़ा आता है पब्लिक प्रेजेंटेशन का भी। ठीक है भाई, चलें इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, टोटल आपके आई थिंक 8 टॉपिक्स बनते हैं, जिनमें से हमने 4 कर लिए हैं। See, I will share the slides, okay? Okay, anything do you want to ask class and tell me if you want to discuss anything else? मेरी क्लासेस सलमान गुरी सबसे ज़्यादा खुश होगा ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि ये हमेशा ठंड में आता था बाइक पे ठिठुरता हुआ आता था, तो कहता था मैडम बहुत रास्ते में फोग बहुत थी ना, बारिश हो रही थी, इस वजह से मुझे देर हो गई है। कभी कहता था फोग बहुत था, कभी कहता था बारिश हो रही है, और ठंड इसको इतनी लग रही होती थी। सलमान व्हाई आर यू लेट इन माय क्लास? मैडम वो रास्ते में फोग भी बहुत थी, मैं बाहर निकला था तो, और बस फुल पैक हुआ होता था ये टॉपिक ली होती थी सर पे, तो इस वजह से सलमान, मेरे ख्याल से सलमान आर यू हैप्पी विद इट? जी। ईमन कल आप कहाँ थी बच्चे? नजर बतूल आप एंड पे आ गई हैं। जब पता है कि आप लिखने वाली है प्रेजेंट एब्सेंट, तो चलो जी।
हो गया, मुझे दे दो, चल रहा आपके लिए